Hello my dear student, how are you? I hope you all are fine. And let us continue with chapter number 5. ओके बेटा, अब हम चैप्टर नंबर 5 का है लास्ट सेकेंड लेक्चर है बेटा. ओके, उसके बाद एक लेक्चर के बाद ये फिनिश हो जाएगा, है ना. चैप्टर नंबर 5 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. इट इज द वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ 12th बायोलॉजी. ओके, तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं थैलेसीमिया. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ ब्लड. थैलेसीमिया किसका डिजीज है बेटा? इट इज अ ब्लड डिजीज. ओके, क्लियर. इन आवर ब्लड there are 3 types of corpuscle are present. Okay, उसको हम corpuscle बोलते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते. RBC, WBC and platelets. What is the full form of RBC? बोलो बेटा. Yes, red blood cell, but actually scientifically it is known as red blood corpuscle. है ना बेटा? Clear? Because they are not cells. Cell के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? सेल डिवीजन की. RBC are not produced by cell division, है ना. सो आरबीसी इज नॉट अ परफेक्ट सेल. ओके, सेल के पास सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, आरबीसी के पास सारे ऑर्गेनल्स नहीं है. समझ में आया बेटा? क्लियर. ओके, तो भी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ corpuscles particles present in blood. RBC, red blood corpuscle, WBC, white blood corpuscle, and third one is platelets. It is also known as thrombocytes. Okay beta, तो भी RBC is red in color. The red color of RBC is due to most important protein, and that protein is known as, बोलो कौन सा प्रोटीन होगा? बोलो बेटा. Yes, बोलिए, दिख रहा है? Yes, it is hemoglobin, है ना. क्योंकि hemoglobin is present inside RBC. Clear? And this hemoglobin is a respiratory pigment. Okay, what is the function of hemoglobin? Transportation of O2 and CO2, है ना बेटा. Do you know the structure of hemoglobin? आपको पता है hemoglobin have a quaternary structure. ये नीट का MCQ. hemoglobin का स्ट्रक्चर कौन सा होता है? quaternary. Okay, it is a highly complex structure, and hemoglobin molecule is made up of 4 polypeptide chain. How many polypeptide chains are there? 4. Okay, कितनी polypeptide chain है भाई? 4. देखो मैं उसका just structure draw करती हूँ. This is alpha type of polypeptide chain. This is beta type of polypeptide chain. Okay, the hemoglobin is made up of 2 alpha polypeptide chain and 2 beta polypeptide chain. Yes, and in each polypeptide chain there is a molecule of metal. हर एक polypeptide chain के बीच में क्या है बेटा? मेटल का molecule है. And this is Fe+2. iron. It is Hem. Okay, so hemoglobin is a conjugated protein. Again need का question. Hemoglobin is a conjugated protein. It is a complex protein. It is a metalloprotein because metal ion is present. समझ में आया? Clear? Hemoglobin. Okay, in hemoglobin Hem. What do you mean by Hem? Hem का मतलब है iron, Fe+2. और globin means protein. There are 4 polypeptide chain in hemoglobin. इतना समझ में आया? Important topic था. Okay, what is hemoglobin? Again, it is a metalloprotein. Okay, it is a not pure protein. It is metalloprotein. Which metal is present? Fe+2, ferrous. Okay, clear? तो चलो आ जाओ. क्योंकि थैलेसीमिया कैसे डिसऑर्डर है? It is ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज. यस, ये वो ब्लड डिजीज है. मतलब हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में प्रॉब्लम हुआ भाई. क्यों प्रॉब्लम हुआ? तो भाई म्यूटेशन हो गया. किसका? जीन का. एंड दिस जीन इज लोकेटेड ऑन ऑटोसोम. ऑटोसोम किसको बोलते हैं? याद करो. इन ह्यूमन, मेल एंड फीमेल हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ओके, हमारे हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? हाउ मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. एंड आउट ऑफ दिस 23 पेयर, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन मेल एंड फीमेल. दे आर नोन एज ऑटोसोम. समझ में आ बेटा? 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज डिफरेंट. इन मेल इट इज XY, whereas in female it is X. फीमेल की बात करते हैं XX.
मेल XY। क्लियर? ओके, तो ये ऑटोसोम पर जो जीन हो गए ना बेटा, उसका म्यूटेशन होगा और उससे ये ब्लड डिजीज हो गया। और कौन से जीन? रिसेसिव जीन, इंपॉर्टेंट। So it is autosome linked recessive blood disease. Okay, it occurs due to recessive genes. Recessive genes ऑटोसोम पर थे, उसका म्यूटेशन हो गया, डिलीट हो गए, रिमूव हो गए या चेंज हो गए और डिजीज हो गया बेटा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि भाई ये डिजीज पेरेंट में से प्रोजेनी में कब आता है? व्हेन बोथ पेरेंट आर अफेक्टेड। ओके, सपोज दोनों पेरेंट कैसे वो कैरियर हो गए। कैरियर का मतलब क्या? वन डोमिनेंट जीन होगा और दूसरा रेसेसिव जीन होगा। मदर हैविंग वन डोमिनेंट जीन and second recessive gene. Okay, father having one dominant gene and one recessive gene. Clear? When mother and father both parent are carrier का मतलब क्या है? heterozygous. heterozygous का मतलब क्या है? they are having one dominant gene and one recessive gene. तो उसको heterozygous बोलते हैं. Then it is transmitted to its progeny. समझ में आया? अपनी प्रोजेनी में वो ट्रांसमिट हो जाएगा। क्लियर? ओके, सपोज पेरेंट दोनों कैरियर है, तो उसके जो चाइल्ड हो गए, सपोज 2 चाइल्ड हुए, तो उसमें एक नॉर्मल होने की संभावना है, दूसरा डिजीज होने की संभावना है। समझ में आया बेटा? क्लियर? चलो आ जाओ आगे। क्यों होता है? रीजन क्या है? दिस डिफेक्ट अकर ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन। ओके, म्यूटेशन और डिलीशन से होता है और उससे क्या होता है? ये जीन रिमूव हो जाता है एंड ड्यू टू इट देयर इज अ रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन, अल्फा और बीटा। समझ में आया कि अल्फा चेन एंड बीटा चेन, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन दोनों में से एक चेन का सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है। हमें पता है कि इन द कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इन द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन्स आर नीडेड। उसमें से कोई भी एक चेन का सिंथेसिस लोअर अमाउंट में होगा तो चलेगा नहीं, ओवरऑल हीमोग्लोबिन को अफेक्ट हो जाएगा बेटा। समझ में आया? क्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगा? क्वालिटी, है ना बेटा? क्लियर? कि भी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन परफेक्ट हो गई, लेकिन एक चेन में प्रॉब्लम आया, वो इनफ नहीं बनी जितनी बननी थी, तो अल्टीमेटली पूरा हीमोग्लोबिन की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। दैट्स व्हाई थैलेसीमिया it is a qualitative problem. Okay, थैलेसीमिया में क्या होगा कि भाई थैलेसीमिया में क्या होगा भाई कि 4 में से 3 चेन बनी, एक चेन नहीं बनी, एक चेन में प्रॉब्लम आ गया। 3 चेन बनी, एक चेन में प्रॉब्लम आ गया, मींस क्वांटिटी चेंज हो गई। 4 चेन परफेक्टली फॉर्म होनी चाहिए। तो थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, whereas सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ था? याद करो। इन सिकल सेल एनीमिया व्हाट हैपन? क्योंकि आरबीसी का शेप कौन सा था? बाइकॉन्केव। कैसा बन गया? समझ में आया? सिकल शेप बन गया। कैसा बन गया? सिकल शेप बन गया। सच आरबीसी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली एंड दे गेट डिस्ट्रॉयड। समझ में आया? क्लियर? तो सिकल सेल में क्या है? आरबीसी की क्वालिटी चेंज हो जाती है और यहाँ पे क्या होगा? हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी चेंज हो जाती है। मींस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में से 3 पॉलीपेप्टाइड चेन परफेक्टली सिंथेसाइज होती है, कोई एक में प्रॉब्लम आ जाता है, तो ओवरऑल जो क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन बनना चाहिए बनता नहीं है। सो थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, व्हेयरएज सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। क्या आरबीसी की क्वालिटी चेंज हो गई? क्यों चेंज हो गई? भाई अंदर का हीमोग्लोबिन चेंज हो गया इसलिए। ओके, अंदर का हीमोग्लोबिन कैसे चेंज हुआ? याद करो। 6 पोजीशन पे इन बीटा ग्लोबिन चेन 6 position having glutamic acid. Instead of glutamic acid, due to mutation, which amino acid came? Valine come. समझ में आया? वेलिन आया, पूरा हीमोग्लोबिन चेंज हो गया, क्वालिटी चेंज हो गई भाई। तो सिकल सेल एनीमिया इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग इनकरेक्टली फंक्शनिंग हीमोग्लोबिन, वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। whereas थैलेसीमिया में जो क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन बनना चाहिए नहीं बनता। So thalassemia is a quantitative problem of synthesizing too few hemoglobin molecule. हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल बहुत कम सिंथेसाइज होते हैं। यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं सिकल सेल एनीमिया में, बट डिफेक्टिव सिंथेसाइज होते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। सो सिकल सेल एनीमिया इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम,
whereas thalassemia is a quantitative problem. माइंड के अंदर सेट करो, बैठी लाइन नेट एमसीक्यू में आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर? तो चलो वापस आ जाओ। Clear? The thalassemia, it is a autosome linked recessive disorder. Yes. Blood disease है. Yes. Parent to progeny कब जाता है? When both parents are carrier, then it is transmitted to its offspring. Very good. ये डिफेक्ट क्यों फॉर्म होता है? This defect form due to mutation or deletion. ओके कि भाई जो हीमोग्लोबिन की चेन का सिंथेसिस करने वाला जीन होता है, ओके, उसमें सर्टेन न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गए, चेंज हो गए, ओके, और ये डिफेक्ट फॉर्म होता है। ये मैंने क्या डिस्कस किया है? दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट। ये जनरली हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड इन ईच चेन देयर इज अ 1 Epi+2 मॉलिक्यूल। तो टोटल कितने? 4 Epi+2 मॉलिक्यूल है। PPC मींस पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर? This defect causes formation of abnormal hemoglobin. तो इससे क्या होगा? ये टोटल 4 चेन है, उसमें से 3 परफेक्ट होगी, 1 परफेक्ट नहीं होगी, तो उससे क्या होगा बेटा? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा एंड रिजल्टिंग इन एनीमिया। सच हीमोग्लोबिन कंटेनिंग आरबीसी गेट्स डिस्ट्रॉयड। ओके, जो आरबीसी के अंदर ऐसा डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होगा वो बेचारे टूट जाएंगे। ओके, और पर्सन को कौन सा डिजीज होगा? एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में भी एनीमिया होता है एंड थैलेसीमिया में भी क्या होता है बेटा? एनीमिया होता है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर? थैलेसीमिया इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिफेक्ट। सेकंड, व्हेन द पेरेंट इज हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है? पेरेंट के पास 2 जीन होंगे, एक नॉर्मल होगा, एक डिफेक्टिव जीन होगा, जो थैलेसीमिया के लिए रिस्पांसिबल है। लेकिन नॉर्मल जीन है इसलिए पेरेंट कैसा दिखेगा? नॉर्मल। समझ में आया? When both parents are carrier, then this disease is transmitted to its offspring. समझ में आया? प्रॉब्लम किस में होता है? Either अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। समझ में आया? उसमें प्रॉब्लम होता है। क्लियर? ओके, और ये भी समझा दिया थैलेसीमिया में क्या होता है? क्वांटिटी कम बनती है हीमोग्लोबिन की। ओके, क्लियर? हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल बहुत कम सिंथेसाइज होते हैं, whereas in sickle cell anemia quality hemoglobin की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। ओके, सो इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। ओके, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। देयर आर two types of thalassemia. Thalassemia is classified into 2 groups, alpha thalassemia and beta thalassemia. नाम से ही पता चलता है अल्फा थैलेसीमिया किसको बोलते हैं कि there is a problem, there is a defect formed in the synthesis of alpha globin chain, then what happens? Alpha thalassemia takes place. Okay, the production of alpha globin chain is affected. कि अल्फा थैलेसीमिया में जो अल्फा ग्लोबिन चेन है उसका सिंथेसिस में प्रॉब्लम होता है। क्यों? उसका रीजन क्यों है? मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो ये नीट का क्वेश्चन अगेन आया, बोर्ड के लिए भी ये थियरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके बेटा, चलो आ जाओ। थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय, थैलेसीमिया को कौन कंट्रोल करता है? तो थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन। नाम है उसका HbA1, HbA2, which are located on 6th chromosome of each parent, 16th chromosome। समझ में आया? क्लियर? तो ये जनरली थैलेसीमिया को कौन कंट्रोल करता है? 2 लिंक्ड जीन साथ साथ होते हैं। लिंक्ड जीन मींस कभी जुदा न होगे, हैं? जो जीन साथ साथ रहते हैं दे आर नोन एज लिंक्ड जीन। HbA1 एंड HbA2 वो थैलेसीमिया को कंट्रोल करता है। कौन सी क्रोमोसोम पे होता है? 16 नंबर के, ऑटोसोम्स बोलते हैं। समझ में आया? 16 नंबर के क्रोमोसोम पे होता है, दोनों पेरेंट के, मेल मदर एंड फादर के। ओके बेटा, अब क्या होता है कि इट इज अकर ड्यू टू म्यूटेशन। ये 16th क्रोमोसोम पे उसके जीन थे HbA1 और HbA2। ओके, क्लियर? मदर के ऊपर 2 जीन थे, फादर के क्रोमोसोम पर 2 जीन थे। तो उसमें से कोई 1 और मोर जीन, ये 4 जीन थे। देख ये क्रोमोसोम है, जस्ट मिनट, दिस इज क्रोमोसोम। ओके बेटा, सपोज ये HbA1 है, then this one is HbA2। ओके, क्लियर? ये फादर के जीन, मदर के भी जीन हो गए ऐसे क्रोमोसोम।
ओके, तो 2 फादर के 2 मदर के, तो 1 या 4 जीन का क्या होगा, यहाँ पे डिलीशन होगा, रिमूव हो जाएगी या तो चेंज हो जाएगा, वो म्यूटेशन हो जाएगा, तो ये डिजीज हो जाता है। ओके, द मोर जीन अफेक्टेड, जितने जीन डिलीट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड। समझ में आया कि जितने भी जीन जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, उतना अल्फा ग्लोबिन सिंथेसिस कम हो जाएगा। और अब देखो दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में है, 2 अल्फा 2 बीटा। अब अल्फा ग्लोबिन सिंथेसिस कम होगा तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस भी कम होगा। समझ में आया बेटा, क्वांटिटी कम हो जाएगी। ओके, कम बनेगा बेटा, क्लियर इतना? ओके चलो वेरी गुड। तो अल्फा थैलेसीमिया क्लियर, नाम से ही पता चलता है कि अल्फा ग्लोबिन चेन इज सिंथेसाइज्ड वेरी लेस अमाउंट, उसमें प्रॉब्लम होता है। क्लियर? अब अल्फा थैलेसीमिया के जीन कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? 16th क्रोमोसोम पे। जीन कौन से है? HbA1 HbA2। तो प्रॉब्लम कब होती है कि पेरेंट के 1 2 3 या 4 जिनमें म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होना मीन्स जीन चेंज हो जाना, और डिलीशन होता है मीन्स रिमूव हो जाना, क्रोमोसोम पर से चले जाना कहीं पे। ओके, तब ये डिजीज होता है। समझ में आया बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी है ना। अब देखते हैं बीटा थैलेसीमिया क्या होगा। हियर द प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, यस, उसका प्रोडक्शन में यह प्रॉब्लम आएगा। ओके, ये बीटा ग्लोबिन चेन का रेगुलेशन कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? ऑब्वियसली एक जीन करता है, एक ही जीन है, सिंगल जीन, नाम है उसका HBB, हीमोग्लोबिन बी जीन, और इट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ ईच पेरेंट। कि मदर की 11 नंबर के क्रोमोसोम पे जीन है और फादर के भी 11 नंबर के क्रोमोसोम पे ये जीन है। जीन का नाम है HBB और वो बीटा थैलेसीमिया को कंट्रोल करता है। क्लियर? डिफेक्ट्स अकर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ ऑफ द जीन। ये डिफेक्ट क्यों होता है कि एक या दोनों जीन म्यूटेट हो गए, चेंज हो गए। समझ में आया? क्लियर? ओके, और एक जीन या 2 जीन में प्रॉब्लम आ जाएगा तो डायरेक्टली क्या होगा, जो बीटा ग्लोबिन चेन बननी चाहिए इतनी इनफ बनेगी नहीं और प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थियोरी थैलेसीमिया। नीट में एमसीक्यू भी आता है। ऑटोसोम लिंक्ड और रिसेसिव डिसऑर्डर। पेरेंट कैसे हो गए? हेट्रोजाइगस हो गए। ओके, हेट्रोजाइगस हो गए तो ऑफस्प्रिंग में जाने वाला है डिजीज। 2 टाइप के थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया जिसमें अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होगी, बीटा थैलेसीमिया जिसके अंदर बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होगी। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन, HbA1 HbA2, किस पर लोकेटेड है? क्रोमोसोम नंबर 16 पर। whereas beta thalassemia is controlled by only single gene, HBB. It is present on 11th chromosome. Clear? समझ में आया बेटा? Last, thalassemia is a quantitative problem. याद रखना है, less quantity में hemoglobin बनता है, so it is a quantitative problem. Whereas sickle cell anemia में क्या होता है? RBC का शेप चेंज हो जाता है, क्वालिटी चेंज हो जाती है, हीमोग्लोबिन की भी क्वालिटी चेंज हो गई थी. So sickle cell anemia is a qualitative problem. Clear बेटा? Okay, so this is the most important theory. Clear? 2 to 3 times वीडियो देखना, 2 times लिख के उसको लर्न करना. Okay बेटा? Goodbye.